Good morning, students. In the previous lectures of the Poets and Pancakes, I told you about the person who had to come in the Gemini studios. Actually, earlier the persons who belonged to the members who belonged to Gemini studios, they thought that the person who was coming there, he was a poet. But later they came to know that here the person who was coming there, he might be an editor. The reason was clear because their boss, Mr. S.S. Vasan, was also an editor. Now they concluded that here the persons who belong to Gemini Studio, they might have an idea about the Manchester Guardian or the London Times. That was the reference of the daily newspaper. But they came to know that here the person did not belong to that daily newspaper. Now I am going to tell you further at page number 63 and the last para. At last, around 4. For whom they were waiting at last, the day has come. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. Because the people were thinking they might be an editor or poet. At last it come in the afternoon at 4 o'clock in the Gemini studios. He was a tall man. The person who was going to describe, he was a tall man. He was very English, very serious person, and of course very unknown to all of us because nobody had an idea about who the person was. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage. On the shooting stage of the Gemini studios, near about half a dozen, means 6 pedestal fans were there. You know very well that a pedestal fans creating too much sound. The boss read out a long speech. The boss, when the person came, it was the responsibility of the boss to introduce who he was. He read a long speech. It was clear that he, means boss, too knew precious little about the poet or editor. Actually, boss had no idea about actually whether he was poet or editor. The speech of the boss was all the most general terms, but here and there. Actually, when he delivered speech, his main motive was not to introduce who he was there. Actually, he did not know very well who he was. So, he started telling about minute who he was, later it to include the words like freedom and democracy. Because he knew very well that here the person would come here, obviously he would be against to communism. That's where included the words freedom and democracy. Peppered means here उसने मतलब बात को क्या है इधर उधर के वर्ड्स को इंक्लूड कर कर और थोड़ा स्पाइसी वे में क्या करा उस स्पीच को प्रेजेंट करा. Then the poet's turn was he spoke. He could not have addressed he Fourier the poet. उसने शायद कभी भी इतनी स्टर्न चौंकने वाली इतनी साइलेंट ऑडियंस को he had never faced. No one knew if the other side of the audience they also did not know who he was and what he was talking about. कि आखिर वो बोल क्या रहा है. The reason was clear because of his accent. They were not getting point because of his way of talking, way of speaking. उसका जो बोलने का वे था वो समझ नहीं आ रहा था. Defeated any attempt, they were trying to understand, but because of his accent, they were not getting point what he was saying. Then the whole thing lasted about an hour. और ये प्रोसीजर 1 hour तक चला. The whole thing lasted about an hour. Then the poet left. After then the poet left. And we all and the members of the Gemini studios, they were really separate. They had left the place. They had gone to their own work. वो वहाँ से चले गए. Separate हो गए अपने had gone to different direction. In utter bafflement. In completely confused. पूरी तरह से कंफ्यूज थे. उन्होंने प्लेस को भी छोड़ दिया कि वो सोचने लगे एट लास्ट व्हाट दे वर डूइंग देयर, कि आखिर वो कर क्या रहे हैं यहाँ पर. और इस फिल्म स्टूडियो में एक इंग्लिश पोएट का काम क्या है. बिकॉज अ फिल्म स्टूडियो मेक्स ओनली तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल. तो वे द रोल ऑफ दिस पर्सन मे बी people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry.
कि जो पीपल जिनका लाइफ्स सिर्फ जो अफोर्ड भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग टेस्ट फॉर कि व्हाट्स द रोल ऑफ द what's the use of the possibility of cultivating creating a taste for English poetry कि the person belong to there, तो what's the role of there to of arrival of the person कि ऐसा क्यों किया गया कि because they are not able to afford them. The poet looked pretty baffled too. Even when the poet had delivered a speech, so he was also looking very confused or perplexed. बिकॉज ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रिटी क्योंकि ये भी चीज़ क्या उसको पूरी तरह से यहाँ पर इनकॉन्ग्रिटी लगी होगी, मैच नहीं लगी होगी, इनअप्रोप्रिएट लगी होगी. ऑफ स्टॉक अबाउट थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स कि जो भी उसने बातें करी चाहे एक्साइटमेंट वे में थी चाहे यहाँ पर अनप्लेजेंट वे में एक्सपीरियंस ने शेयर करा, तो एटलीस्ट he did not know कि why was sharing experience there because they were also not able to understand because of his accent. In such a way, nobody came to know that here the person who had come in Gemini studio, he was, and even after speech, they did not come to know that here कि at least who he was. इस तरह से his visit remained an unexplained mystery. वो यहाँ क्यों आया ये एक रहस्य ही बना रहा. You must mark this important line. The great prose writers of the world may not admit it कि जो बड़े बड़े जो गद्य लिखते हैं, जो प्रोज राइटर, प्रोज जैसा हम जो पढ़ रहे हैं इसको प्रोज कहा जाता है, पोइट्री अलग होती है, कि जो प्रोज राइटर्स होते हैं वर्ल्ड के वो इस बात को शायद एक्सेप्ट ना करें, पर मेरा बिलीव दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था कि प्रोज राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस. एक जीनियस का एक मेन लक्ष्य है प्रोज राइटिंग नहीं हो सकता. अगर किसी को और अच्छा सिद्ध करना है तो ही विल हैव टू राइट डिफरेंटली, क्योंकि प्रोज राइटिंग के लिए इट फॉर प्रोज राइटिंग इसके लिए क्या है, पेशेंट चाहिए, धैर्य चाहिए, परसिस्टेंट कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए, प्रिजर्विंग ड्रज बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, एक जो बहुत ही लॉन्ग हार्ड मतलब इट्स लाइक अ बोरिंग जॉब्स में भी देयर. देन इसके अलावा विद अ हार्ट सो शंकन दैट, और ऐसा हार्ट चाहिए जो इतना शंक हो जाए कि जिसे कोई तोड़ ना सके. रिजेक्शन स्लिप डोंट मीन नथिंग टू हिम, और रिजेक्शन का मतलब कोई के लिए मायने ना रखे. He at once sets about making a fresh copy. Having rejected these things, the author started to write something here. Instantly उसने fresh copy लिखना शुरू कर दिया एक long prose piece का, because he had to send it on to another editor enclosing posters for the return of the manuscript. He had to return to think that here क्योंकि उसने कुछ लिखा क्योंकि उसे कहीं पर भेजना था, और यहाँ पर उसने स्टैम्प लगाया और इस उद्देश्य से कि शायद इसका जवाब आए आखिर जो इस बार जो प्रोज राइटिंग की चीज़ भेज रहा है क्या चीज़. एक्चुअली जिसके लिए प्रोज राइटिंग का लिख के भेज रहा है उसका सुन लीजिएगा, इट वॉज फॉर सच पीपल, ये उन लोगों के लिए था ये जो प्रोज राइटिंग का ऑथर ने भेजा था. बिकॉज द हिंदू इज़ द नेम ऑफ द साउथ न्यूज़पेपर. द हिंदू had published a tiny announcement. हिंदू न्यूज़पेपर ने एक छोटा सा अनाउंसमेंट निकला था एक छोटे से इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में, एक अनइम्पॉर्टेंट पेज में, लास्ट पेज में भी देर. उसमें क्या लिखा था, अंडरलाइन कर लीजिएगा. ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर. देयर वॉज अ न्यूज़पेपर, the name the British periodical may be there, periodical weekly या monthly form में होता है तो it might magazine में भी there, कि यहाँ पर एक जो हिंदू मैगजीन में एक शॉर्ट नोटिस निकला था. उस नोटिस में क्या था, द एनकाउंटर which is the British periodical that is going to organize a short story contest. एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा था, और यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग में ही लोगों को क्या अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखकर भेजनी थी जैसा कि ऑथर ने भेजा था. अब नाउ एनकाउंटर वॉज नॉट ए नॉन कॉमोडिटी. अब एनकाउंटर क्या था, द पीपल ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट नो अबाउट दिस थिंग. इसके बारे में उन्हें नहीं पता था. जो भी स्कॉलर्स थे, लेटर टाइम में स्कॉलर्स जो वहाँ पढ़े लिखे लोग थे, स्कॉलर्स थे, उनको इसके बारे में नहीं पता था. I for the author Ashoka Mitran, I wanted to get an idea about the periodical. पर मैं before sending, because I've written that here, I've also pasted a stamp there. लेकिन भेजने से पहले मैं जानना चाहता था कि आखिर ये periodical encounter है क्या.
क्योंकि इफ़ आई वुड स्पेंड अमाउंट ऑन द पोस्टेज तो, और इफ़ आई वुड सेंड माई मनोस्क्रिप्ट और हैंड रिटन आर्टिकल और प्रोज राइटिंग, तो आई वॉन्ट टू कन्फर्म कि वादर what is the encounter. फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए मैं कहाँ गया, इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन, कि उस पर्पज़ के लिए मैं कहाँ गया, इन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में। उन दिनों की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, उसकी एक एंट्रेंस थी, और एंट्रेंस में कोई बड़ा सा कोई विंडेड साइन बोर्ड नहीं लगा था। एंड नोटिस टू मेक यू फील, जो तुम्हें फील करा सके कि आप ऐसे एरिया में एंटर कर रहे हो कि फॉरबिडन के एरिया जहाँ पे मना करा जाए। तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ था, यू कैन एंटर देयर, तो आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं हो सकता कि आप ऐसे एरिया में एंटर कर रहे हो चोरी छुपे जहाँ पर आपकी मनाही हो। तो यू कैन एंटर देयर, देयर वाज नो साइनिंग बोर्ड देयर। एंड when I reached there, I observed, when the author reached there, then he observed the fresh copies of the encounters, then lying about the various degrees of freshness. वहाँ पर कुछ encounter कॉपी रखी थी, almost untouched. It had not been made by any, it had not been touched by any one of the readers. अभी किसी ने इसको टच भी नहीं करा था. But when the author read the editor's name, then he was really very happy. He heard a bell ringing in his shrunken heart. श्रंकन हार्ट कहाँ गया है, जो प्रोज लिखते हैं, जो अभी भी आया था कि मेरे जो श्रंक हार्ट था, सिकुड़ा हार्ट था, ऐसे लगा जैसे उसमें क्या है, घंटियाँ बजने लगी. आई वॉज वेरी हैप्पी टू when I came to know that, when the author came to know about the editor's name. Actually, it was the same poet. The editor of the encounter was the same poet who had visited the Gemini studio. ये वही पर्सन था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, जिसके बारे में सब लोग कंफ्यूज थे कि एडिटर है, कौन है, या पोएट है. He was the same person when I read the editor's name. I felt like I had found a long lost brother. मुझे ऐसे लगा जैसे कि मुझे खोया हुआ भाई मिल गया हो. और एंड आई सेइंग एज आई सील्ड द एनवलप. अब लास्ट में क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया कि जो एडिटर है जाना पहचाना है, तो आई डिसाइडेड, तो मैंने क्या करा, जो मैंने अपना प्रोज राइटिंग लिखा था, मैंने उसको पैक करा, पूरी तरह सील कर दिया एनवलप को, और मैंने उसके एड्रेस पर भेज दिया. अब नाउ आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको भी ऐसी फीलिंग हो रही होगी जैसा मुझे हो रहा है. ही टू बिट बी सिंगिंग, शायद वो भी सेम सॉन्ग गा रहा होगा जैसा कि मेरे मन में सेम सॉन्ग चल रहा था. जैसा कि हिंदी मूवीज़ में जब कोई खोया हुआ भाई मिलता है स्टार्टिंग के और एंड की रील में, उसी तरह का गाना चलता है. इसी तरह का गाना मेरे मन में, उसके मन में भी शायद चल रहा हो. लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच ब्रदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड द फाइनल रील ऑफ द फिल्म. स्टीफन स्पेंडर, हु द पर्सन स्टीफन स्पेंडर. एक्चुअली इस पर्सन का नाम, जो एडिटर था, पोएट था, वो कौन था, स्टीफन स्पेंडर. द स्टूडेंट्स यू ऑल्सो नो अबाउट स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर इज द पोएट ऑफ सेकेंड पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम. अब मिस्ट्री को सॉल्व होने लगी थी, तो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि रियली ही वॉज द एडिटर, क्योंकि एडिटर ऑफ किसका एडिटर था, ही वॉज द एडिटर ऑफ द एनकाउंटर. एंड ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, when the author had to leave his job, अब ऑथर को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी जेमिनी स्टूडियो से, and he had no enough time, and sorry, he had much time, टाइम बहुत था, पैसा नहीं था, because he had left the job. Anything at a reduce, because he had no money, he had to spare time. तो जब भी कोई सस्ती चीज़ें होती थी उनकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो जाता था. अट्रैक्टेड इज अटेंशन ऑन द फुटपाथ और पेमेंट. उसने पेमेंट में क्या देखा, इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने, कि वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, कि यहाँ पर ढेर लगा हुआ था नई बुक्स का, ब्रांडेड न्यू बुक्स थी. एक बुक की कीमत कितनी थी, 50 पैसा ईच. एक्चुअली ये जो कॉपीज़ थी, दे वर द कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक्स, सारी बुक्स सेम थी. और एक बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही अच्छा पेपर बैग था, अमेरिकन ओरिजिन थी, और स्पेशल लो प्राइस, बहुत ही कम कीमत की बुक थी, स्टूडेंट के एडिशन के लिए थी. और ये एक्चुअली कब पब्लिश हुई थी, रशियन रिवोल्यूशन के 50th एनिवर्सरी पर पब्लिश करा गया था. मतलब बहुत ही सस्ती बुक थी. द ऑथर पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ बुक. अब author had no enough money, even then he had enough money, he could pay 50 paisa. In such a way, the author paid 50 paisa and he took that a copy of a book.
द नेम ऑफ द बुक वॉज द गॉड दैट फेल्ड. उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट बुक इट इज. Actually, this book has a collection of 6 scholars, 6 writers, 6 men of letters. कि यहाँ पर ये जो बुक थी ये क्या थी? 6 लोगों का कलेक्शन था. अब यहाँ पर 6 लोग कौन थे? जिसमें इन 6 लोगों के अलग अलग एसेज थे, जिसमें इन्होंने these essays have described their own personal experiences, जिसमें इन्होंने अपनी जर्नीज को डिस्क्राइब करा था कम्युनिज्म, क्योंकि दे वर अगेंस्ट टू कम्युनिज्म. ये सब कम्युनिज्म के खिलाफ थे. स्टीफन स्पेंडर वाज आल्सो वन ऑफ देम. और यहाँ पर इन्होंने अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताया था और किस तरह से इनकी यात्रा रही कम्युनिस्ट के प्रति और किस तरह से इनकी डिसअपॉइंटमेंट वापसी रही. अब कौन कौन पर्सन थे? एंड्रे गिल्ट, इनका रेफरेंस नीचे दिया गया है. एंड्रे गिल्ट की अगर बात की, यहाँ पर एंड्रे गिल्ट एज वेल एज एंड्रे गिल्ट यहाँ पर फ्रेंच राइटर के लिए है. फिर इसके बाद है रिचार्ड राइट. रिचार्ड राइट कौन है? एक अमेरिकन राइटर है. फिर इग्नाजियो सिलोने, ये एक इटालियन राइटर है. फिर आर्थर कॉस्टलर. आर्थर कॉस्टलर यहाँ पर कौन है? एक इंडियन राइटर है. लुइस फिशर के बारे में आपने महात्मा गांधी के चैप्टर में पढ़ा है. ही वॉज ऑथर द इंडिगो. एंड स्टीफन स्पेंडर, यू नो वेरी वेल हु ही वॉज. इस तरह से इनके बारे में आपने पढ़ा है. तो स्टीफन स्पेंडर, एक्चुअली व्हेन ही केम टू नो दैट लास्ट पर्सन स्टीफन स्पेंडर, then Stephen Spender suddenly when he came to know that here the person who was written the essay was also one of the Stephen Spender, कि स्टीफन स्पेंडर ने भी इसको लिखा है. द बुक एज्यूम, तो बुक की अपने एक वेरी बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस बढ़ गई इंस्टेंटली. देन सिग्निफिकेंस, स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो. अब स्टीफन स्पेंडर कौन था? ही वॉज द सेम पर्सन हु हैड कम इन जेमिनी स्टूडियो, जिसके लिए अनएक्सप्लेन मिस्ट्री कहा गया था, क्योंकि दे डिड नॉट नो हु द वॉज. पर अब थोड़ी मिस्ट्री सॉल्व होने लगी. एक्चुअली वॉज द एडिटर because he was the editor of the encounter. He was the essayist because he had written the book The God That Failed. Yes, in that book he had presented his journey to communism and his disillusioned return. He felt a dark chamber of his mind. जब उसे पता लगा when the author come to know about that year, तो उसके हॉल में, मीटिंग हॉल में ऐसे लगा जैसे कि लाइट सी जली हुई, एक ब्राइटनेस सी, थोड़ी हल्की सी ब्राइटनेस सा फील हुआ. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो. अब यहाँ क्लियर हो गया. अब उसकी विजिट मिस्ट्री नहीं थी, सबको समझ आ गया कि वाई हैड कम देयर. ही हैड कम देयर बिकॉज ही वाज आल्सो अगेंस्ट टू कम्युनिज्म, क्योंकि कम्युनिस्ट के खिलाफ था. जो लोग कम्युनिस्ट के खिलाफ थे यूजली जेमिनी स्टूडियो में आया करते थे. और बॉस जैसे लोग इनकी कठपुतली थी. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्टीफन स्पेंडर्स पोएट्री. शायद बॉस का कोई इससे लेना देना नहीं, क्योंकि बॉस को तो स्वागत करना होता था, क्योंकि कम्युनिस्ट की वजह से. चाहे बॉस का उससे लेना देना हो या ना हो, बट नॉट पर स्टीफन स्पेंडर से लेना देना हो या ना हो, लेकिन हाँ बॉस का उस गॉड से जरूर लेना था जो फेल हो गया था. या गॉड दैट फेल मीन्स ये कम्युनिज्म. गॉड बॉस का चाहे स्टीफन स्पेंडर से कोई लेना देना हो या नहीं हो, लेकिन हाँ बॉस का गॉड दैट फेल मतलब कम्युनिस्ट से जरूर लेना देना था कि जो बुक लिखी गई थी कम्युनिस्ट के प्रति थी. यू नो वेरी वेल दैट अर्लियर आई टोल्ड यू दैट ईयर कि जब बॉस जैसे लोग इनके पपेट थे, हमारे रहे ना रहे, इस तरह के लोग रहे ना रहे, लेकिन दे वर द एक्चुअली दे टू फॉलो दोज कंसेप्ट, दे वर अवर्स टू कम्युनिज्म. इन सच ए वे गॉड दैट फेल्ड द बुक है वो किससे कनेक्टेड थी? कम्युनिस्ट से कनेक्टेड थी. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू कम्युनिज्म. ओके, थैंक यू.